So we are doing carbohydrates. Carbohydrates is important both for mains and advance. Okay. So carbohydrates, we'll be referring two things as you can see on my screen that I'll be using NCRT and notes because I won't be able to write all things in 1.5 hours. So wherever it is already there, I'll use that. You can have your own NCRT sets if possible in hand or from the next class, please sit with your phase 1 notes and NCRT along with you. ओके आज तो जैसे भी हैं वैसे ही शुरू करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज टेक केयर चलो तो कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम itself suggested that it is carbon which is hydrated if you see the usual formula it is H and OH written on carbon so each carbon is fundamentally hydrated. CxH2n is the usual representation for carbohydrates. Okay, CxH2n was taken as an initial and the usual representation, which certainly may or may not be always true. Okay, this was the idea that these should be the carbohydrates, but this may or may not be true. Yes, it is true for glucose. This type of definition, this type of concept was true for glucose, but may or may not be true because it is unfit or it is untrue for certain examples like rhamnose. Rhamnose is C6H12O5. So when you will set it as CxH2O a number of times, this H2O5 will not fit in for this. Whereas in case of glucose, you can write it as CxH2O 6 times. So this definition is by and large true, but not always true. Okay, so what chemically today carbohydrate is, we'll follow the NCRT definition. We'll follow this definition that carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehydes or ketones. Now this optically active word पे हमें stress देना है because most other books do not emphatically stress the word optically active. They simply say that they are polyhydroxy aldehydes and ketones, but optically active is also very important. When I say that they are optically active polyhydroxy aldehydes and ketones, when we say this, then definitely the smallest carbohydrate for us becomes glyceraldehyde. This is D-glyceraldehyde and its mirror image will be L-glyceraldehyde. But due to the same word optically active, we have to exclude this ketose sugar from the definition of carbohydrates. So this is not regarded as per NCRT as the smallest कार्बोहाइड्रेट स्मॉलेस्ट कार्बो मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि कई बार कैमरा और ये में हैंग हो जाता है सिस्टम पर्टिकुलरली ये राइटिंग टैब सो लेट्स गो सो कई ये जो कीटोज है ये एज पर एनसीईआरटी इज नॉट रिगार्डेड एज अ स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ओके सो वी आर एक्सक्लूडिंग दिस ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ smallest carbohydrate. For us, the smallest carbohydrate is glyceraldehyde, which is also used to define D and L sugars in general. It is also used to define D and L sugars. Correct? Now, carbohydrates are also called saccharides. Carbohydrates are also called saccharides. And from that only we will use the classification में word or the terminologies. Okay. Now,
saccharide. Saccharide. ओके, saccharide वर्ड भी हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और यहीं से वर्ड ऐड होता है, दैट इज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, एसेट्रा. Okay. Now, this portion that carbohydrates are classified as is given very nicely in NCERT. So, यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी. मुझे जहाँ लगता है कि तुम लोग क्वेश्चंस में एरर करते हो वहाँ मैं रुकूंगी. मैं 5 मिनट में इसे वाइंड अप करना चाहूंगी. That is classification of carbohydrates. Classification A is based on taste. All of you know that yes, they can be sweet in taste or they may be just tasteless. So these are called sugars and these are called non-sugars. ये starch इसका example हो सकता है, sucrose इसका example हो सकता है. That is this. Second classification जो हो सकता है वो हो सकता है based on their hydrolysis product. Okay, on the basis of their hydrolysis product. That is, if on hydrolysis they create only one or they cannot be further hydrolyzed, the simplest carbohydrate, those that cannot be hydrolyzed into any simpler further are classified as monosaccharide. Glucose, fructose, maltose, ये सब इसमें. Sorry, mannose, not maltose. Then if they give on hydrolysis two monosaccharide units, then they are called disaccharides. Similarly, 3 अगर दे रहे हैं तो trisaccharides, right? If they give 2 to 10, then they together were named as oligosaccharide. These all terminology are very well mentioned in NCERT, and then polysaccharide, which are greater than 10. If on hydrolysis further, the monomeric units generated from a carbohydrate are 10 or further, then they are called polysaccharide. Polysaccharide are abundant in living systems and they are source of energy. Okay, carbohydrates आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वर्ड हमें पता होना चाहिए. मेंस में इस तरह की लैंग्वेज हो सकती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट जब भी हमें लो फील हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, देन दीज आर द फूड दैट यू शुड immediately have intake that will give you high on energy feel. And these could be sugars, these could be potato, rice, wheat, beans, corn, these are all rich source of carbohydrates. So they are all rich source of energy. Now one important term that you have to remember that these energy या these form of energy जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो बॉडी इनको कैसे स्टोर करती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. Yes, they are oxidized in our body. Okay, carbohydrates are oxidized in our body. हमारी बॉडी में इसका ऑक्सीडेशन होता है इन आवर बॉडी टू गिव एनर्जी, और ये एनर्जी हमें देते हैं. दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी टू गिव एनर्जी. यस, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ दिस ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हीट एंड अदर केमिकल एनर्जी फॉर्म जो हो सकता है. बट व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज दैट द एनर्जी इज कंजर्व्ड. दिस एनर्जी इज कंजर्व्ड in our body or in any living system. It is not just us. Okay, when it is transformed, that the energy is conserved as ADP or ATP, adenosine diphosphate or adenosine triphosphate in our energy.
Okay, these terms you have to remember that they are somewhere related to energy. हमारे body में when carbohydrate oxidations take place, then the energy converted is stored in our body in the form of ADP or ATP. Okay, adenosine diphosphate और adenosine ट्राइफॉस्फेट. हमें इसके स्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं है, but you should know this terminology for mains. So that is why I have marked this, that energy is stored as ADP or ATP. Correct? Now, further, this was the classification of carbohydrates. Moving to classification of monosaccharides. Now we are not going for carbohydrate. Now, please take classification very clearly that first I classified carbohydrates, which was classified into two category, two criteria. First based on taste, and other was hydrolysis product. Now amongst this monosaccharide which cannot be further hydrolyzed, उसको हम आगे classify कर रहे हैं. Okay. Now these are classified into two categories. Category A based on the functional group present, carbonyl functional group present, carbonyl functional group present. This carbonyl functional group could be aldehyde or could be ketone. So aldose sugars or pentose sugars. ये नाम हम देंगे. B is based on number of carbon atoms. कितने carbon atoms हैं उसमें, इस पर based हो सकता है classification. As we have seen, 3 glyceraldehyde was the minimum to start with. सबसे छोटा count was D. Glyceraldehyde में 3 carbon. So 3 carbon, then they are called triose sugars. Okay, 3 carbon atoms, then they are called triose. C4, then they are called tetrose. C5, then it is called pentose, the usual way. जैसे हम ये 5 को IUPAC में ही हमने वर्ड देखे हैं ये सब कि ये कहे जाते हैं. C6 is hexose and so on. Ideally, yes, could there be heptose and all? Yes. But we'll be more concerned only up to hexose. Hexose is the upper limit for us. Okay, so these are all that we have to know. C is the classification based on their D and L nomenclature. मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं, इसलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ. Capital D, capital L was the nomenclature that was done in optical isomerism chapter. In this type of nomenclature, we take diglyceraldehyde, or I should say glyceraldehyde, as a reference basic molecule, and from that, okay, and from that we relate other aldehydes and ketones to name them as D or L sugars. Right? एक बार short में याद दिलाती हूँ. This was D-glyceraldehyde and its mirror image was L-glyceraldehyde. I think कुछ को तो याद होगा ही that coincidentally the D was R in configuration and L was S in configuration. That was a mere coincidence. It may or may not be always true for other sugars. But for D-glyceraldehyde, or for glyceraldehyde, it was true. So those sugars, okay, those sugars which are derived from D-glyceraldehyde as a parent molecule were named as D sugars, and those which were derived from L-glyceraldehyde as a starting molecule were called L sugars. Okay, that was the DL nomenclature. Those sugars which are derived from D were D and L. But practically it is not possible that in an exam एक क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने है and we are asked that whether it is a D sugar or a L sugar, हम बताएं उसे कि it was derived from where. So for direct Fisher, how will you call them as D and L? So you will say those sugars
in which highest IUPAC numbered, and this IUPAC highest numbered, we say 1, 2, 3, 4, 5, the fifth carbon we are targeting. Highest IUPAC numbered chiral center. It has to be chiral. A glucose may have 6 carbon, but the nomenclature here will be with reference to the fifth carbon. So those sugars in which highest IUPAC numbered chiral center is on right hand side of correct Fisher. Correct Fisher, longest carbon chain on the vertical line, highest oxidation state carbon closest to the vertical top. Then we'll call it correct Fisher. On the right hand side of correct Fisher, then D sugar, and if on left hand side, then it is called L sugar. Clear? Terminology clear? So this was one more classification of these carbohydrates. Till here, I guess there is no such problem. कुछ ऐसा होगा नहीं. Now I'm directly moving to the structural features and all those things, जहाँ पर ये सब कैसे इनके structures होते हैं और उससे क्या-क्या properties हमें पता होनी चाहिए. Okay, let me relate every moment possible. मुझे बीच-बीच में याद दिलाते रहना कि एक बार NCERT देख लें. So कि NCERT is primary for mains. Yes, slight advanced questions will be for advanced exam that parallelly we'll do, or we may even do a post February. But abhi jo primary criteria NCERT always for both mains and advanced, so compulsory hai. So the carbohydrate may be defined like this. We have done classification of carbohydrate हमने करा अभी, monosaccharide और ये सब. Then monosaccharide का further classification as aldose and ketose. This we just did as triose, tetrose, pentose. Together they were named as aldotriose, ketotriose. If the both nomenclature or both classification are merged together, तो नाम जो हम दे सकते हैं for various monosaccharides वो यहाँ पर दिया हुआ है. Now, as you can see, this is also moving to particular case of one monosaccharide glucose, and we were also moving further to monosaccharides in general. ये बहुत जल्दी यहाँ पर आ रहा है structure of glucose पे. Preparation and structure. यहाँ जो preparation है NCERT में बच्चों तुम्हें क्या याद रखना है? What you have to keep in memory? ये क्या पता होना चाहिए? Cane sugar, ये पीछे भी आ जाएगा अभी after some time, so that this first point is not that important at this page. Later it will become important कि by the hydrolysis of cane sugar दो चीजें मिलती हैं glucose and fructose, so one glucose comes here. Okay? ये बाद में नहीं आएगा. Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch. ये लाइन बाद में नहीं आएगी, ये ध्यान देना है. When it says 393 Kelvin, you can see the temperature is above 100 degrees centigrade under pressure. So when we hydrolyze starch at this high temperature and pressure, तब जो बनते हैं molecules उसमें भी glucose बनता है. ये लाइन नहीं आएगी. दिस विल बी रिपीटेड फर्दर और वहां और डिटेल में होगी तो वहां कर सकेंगे हम. चलो अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज. और ये सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव जंक्शन है, सो मैं इसे पहले एनसीईआरटी से मार्क करके देन आई विल गो टू अदर थिंग्स. ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज अ डेक्स्ट्रोज शुगर. ये डेक्स्ट्रोज वर्ड तुमने मोर कॉमनली आई गेस देखा होगा मेडिकली जो जिसे कहते हैं ना बॉटल चढ़ना, ग्लूकोज चढ़ रहा है, उन बुक्स उन पैक्स के ऊपर लिखा होता है द वर्ड डेक्स्ट्रोज एंड ऑल्सो द सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन. इट इज अ 10% डेक्स्ट्रोज, इट इज अ 12% डेक्स्ट्रोज. ये लैंग्वेज तुम्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज्यादा देखने को मिलेगी डेक्स्ट्रोज एज कंपेयर टू डे लाइफ. डे टू डे लाइफ में ग्लूकोज का ज्यादा इस्तेमाल दिखता है. दो बोथ आर सिनोनिमस, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट
In medical world, this word is more common. It is the monomer of many of the larger sugars, yes, and it is, I would say, the most widespread monosaccharide around. As it has been said next, most abundant organic compound on earth. Okay, it was assigned the structure given below. आओ structure पे हम अपने तरीके से बढ़ते हैं, then we'll come back for verification from NCERT. कोई भी point NCERT का ना छूटे, इसलिए मैं parallelly उसे open रख के चल रही हूँ. Okay, कुछ एक एक line for carbohydrate from NCERT should be clear and should be in your memory ultimately. और मैं question पूछूंगी बेटा. मैं campus में आऊंगी तो अगर मुझे time मिला, I'll come to your class, ask random 4-5 questions. What was the theory में definition क्या थी, किस चीज का क्या है, not from today of course, from tomorrow. तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है. ये एक्स्ट्रा, ये जो सुबह शाम की ये मेहनत है, ये कहीं भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक, अच्छे से पढ़ाई करोगे. ये चेक तुम खुद तो अपनी तरफ से रखो ही. मैं भी जानना चाहूंगी कि हाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे. आओ बढ़ते हैं. तो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मोनोसेकेराइड क्या क्या इसमें होता है. मुझे इस पूरी सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है, जहां बच्चे क्लियर होने चाहिए, वाज द हेवॉर्थ एंड एनोमर का डिस्कशन. कि ये क्या है, हेवॉर्थ क्या है, एनोमर क्या है, एनोमेरिक कार्बन क्या है, स्टेबिलिटी किसकी क्या है, ये पोर्शन मैं डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले. इस पर क्वेश्चन जेई में बहुत बार आए हैं. इट इज नॉट वन टाइम केस, बहुत बार आए हैं. इंटरनल एग्जाम में भी इस पर बहुत क्वेश्चंस होते हैं. आओ इसको देखते हैं. मैं एग्जाम्प्लीफाई करती हूँ फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज हमने 11th में ही याद करा था दैट इट हैज 4 कायरल सेंटर्स. और हम उसे याद रखते थे राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, right, right. This was the representation of glucose. Now, yes, if I IUPAC numbered it, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. The reaction which I am using to form the anomer is aldehyde ketone chapter reaction, that if alcohols attack on del plus of carbonyl like this in presence of dry HCl, यहाँ पर माइनस आ गया, and then there is a IMPE, intramolecular proton exchange. Please learn this word very carefully. Whenever a molecule has this linkage that OH and ether are on the same carbon, तब हम उसे कहेंगे hemiacetal. As you can see, it is a completely reversible phenomena. Hemiacetals are unstable. They are not that stable. Unstable, particularly in open chain structure. Particularly open chain में ये बहुत ही unstable होते हैं. Open chain structures. And for them, the reaction goes backward. Relatively, hemiacetals are stable in 5 or 6 membered cyclic forms. Okay, ये ऑब्जेक्टिव है. हेमीएसिटल्स आर स्टेबल आर अनस्टेबल कब होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ये मार्क करें. सो दिस इज व्हाट हेमीएसिटल इज. अब देखो, इफ C5 of this glucose attacks on this sp2 carbon, right? If it attacks on this sp2 carbon, then rest configurations will remain same, but this top CH will now have one OH extra. बोले OR कहाँ गया? OR तो यही आएगा ना, ये जो साइकिल आएगी, ये OR की आएगी. मैं इसे रिपीट बना लूं. Just give me 1 second, not much. Is H O H H O H
OH H और ये ऑक्सीजन गया, तो ये OH का काम ये OR का काम कर रहा है और एक नया OH बना, ये 1 2 3 4 5 6. So this was an sp2 carbon which was achiral in the open chain but has become chiral in the cyclic structure. This is called its anomeric carbon. Okay, this is named as anomeric carbon. What are anomers? मैं बता रही हूँ. एक other possibility ये हो सकती थी that this COH carbon number 1. Okay, as I was writing Fisher, I should not even write this carbon. I should just cross it. So ये जो carbon number 1 का Fisher में OH है, if this goes to the left, then it is called another anomer. Now, which is what ये तुम्हें याद रखना है. बिल्कुल अच्छे से सुन रहे हो तुम. याद रखना है. There is no question. क्या हमें ये याद रखना है? Yes. मैडम बहुत मुश्किल हो रहा है. नन ऑफ माय बिजनेस. अगर जेई क्वालिफाई करनी है इज्जत से तो याद रखने वाली चीजें याद ही रखनी है. उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. 2 महीने हैं और अगर नखरे करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान अपना ही होगा. सो टाइम नहीं है अब नखरे करने को कि मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ. सबको याद होता है. कोई यहाँ गधा नहीं बैठा है. तुम सब अगर यहाँ बैच 1 बैच 2 कैंडिडेट्स हो, सबको याद होता है. हाँ, मेहनत करनी पड़ती है. ये जरूर है कि कुछ कामचोर हैं, कुछ मेहनती हैं. दैट इज द डिफरेंस. याद सबको होता है. किसी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. दैट ऑल्सो आई कैन एक्सेप्ट. कुछ जल्दी याद कर लेते हैं, ये मैं मानती हूँ. बट याद ही नहीं होता है, दैट इज सच अ स्टूपिड थिंग टू टेल. So don't ever give that particular logic to me. Madam, मुझको तो याद ही नहीं होता है. Then you should not opt for IIT. Don't ruin your result and of course expectation of teacher and parents. फिर पहले ही घर पर बैठो. So this OH is on the right hand side. If this OH is on the right hand side and this OH is on the left hand side, that is the only difference in the conventionally correct Fishers. Okay, so this right hand side, so it is called alpha anomer. When it is on the left hand side, then it is called beta anomer. Okay, and as these are the 6-membered rings, तो Haworth ने दो representation दिए थे. Haworth ने दो दिए थे कि when they form a cyclic structure, then either it is going to be a pyranose structure or it is going to be a furanose structure. Furan, tetrahydrofuran. From there the word was taken. Okay, furan से furanose word आया था. So from there they took that if it is a representation of 5-member ring, तो furan या tetrahydrofuran दोनों को हम रेफरेंस में ले सकते हैं. Then it is called furanose. Pyran. This is called pyran. इसी का saturated version इससे related is the pyranose. So glucose exists in pyranose structure. Is that clear? अब यहां से ध्यान से सुनना कि जब pyranose structures का हम Haworth बनाते हैं, convention क्या है? Okay, convention of drawing the Haworth for this, that oxygen should be on the vertical top, right hand side in a pyranose structure as a rule. Okay, as a rule in a Haworth, this oxygen which is a part of a cycle has to be on the vertical top right side. Then you put this down up thing, and IUPAC numbering of carbon centers always in a clockwise direction. 6th carbon not found, abhi kar rahe hain. We'll do that, just wait. Let me repeat the structure once again. So what you have to do is write top पे वो बनाया, and then you will write 1 2 3 4 5. 6th carbon, as I said, is still missing. Just wait for a second. So in a Haworth, you have to draw a 6-member ring with right extreme top oxygen and rest all groups on vertical
lines. Now see, जो ये बना हुआ है ना हमारे सामने फिशर, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट स्टेबल. मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, मुझे कुछ बताना है विजुअली. सो ये जो फिशर बना हुआ है हमारे पास अभी जो स्ट्रक्चर था, उसका जो फिशर रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है, इस इस स्ट्रक्चर को हमें राइट में टिल्ट करना है. Okay, we have to tilt this vertical fissure into right. So whatever was on the right hand side of a fissure will go on the downside of the Haworth. Whatever is on the left hand side of the fissure will go on the top side of the Haworth. Is that clear? Right hand side will go on the bottom, left hand side will go on the top. That is how a correct representation of fissure will be done. I hope that is clear. Right, अगर तुम ऐसे ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा कि जो राइट है वो बॉटम में आ रहा है ना. जैसे ये बॉटल है, इसको ऐसे लुढ़काना है. दैट इज द आइडिया. ओके, कि इसको ऐसे लुढ़काना है. फिक्स रूल है, नेवर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, गलती से भी नहीं. नेवर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा फिक्स रूल टू द राइट हैंड साइड. दैट इज द पर्टिकुलर कंडीशन वी हैव टू फॉलो. राइट हैंड साइड करते ही बॉटम वाले जो साइड होंगी वो डाउन में बनेंगी इन अ फिशर. आओ वापस से आती हूँ इस पे बनाने में. सो दिस विल गो ऑन द डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, अप साइड, अप साइड, अप साइड, अप साइड. Okay, this is not 4, huh? It is U. Upside, 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 upside. Now the point is where to place this CH2OH. बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन है, बहुत पुराना पॉइंट है. वो like to add that very old point, and the point was, if you do two exchanges on the same, if you do two exchanges on the same chiral carbon in a fissure, then its configuration remains same. आओ कलर चेंज करके मैं दो exchanges लिखती हूँ. Okay, first I exchange H and CH2OH यहाँ आया. करेक्ट. सेकेंड आई एम एक्सचेंजिंग, अब मैं दूसरे कलर से करती हूँ. आओ, सेकेंड आई एम एक्सचेंजिंग H मैं यहाँ लाई और ऑक्सीजन यहाँ आया. दिस वॉज द सेकेंड एक्सचेंज, एंड ग्रीन आई एम रेफरिंग एज अ फर्स्ट एक्सचेंज. ओके, after doing this you can realize that now as per my requirement the vertical line entirely which is in the loop उस पर ऑक्सीजन आ गया है. H is on the right hand side and CH2H is on the left hand side. Correct? And that is on the D sugar. D sugar. If it was on the if the CH2OH end में आता है right hand side, then it is L sugar. बोले कैसे बोल दिया आपने इतनी fast? बेटा mirror image देख लो. If it would have been in the mirror image, ये CH2OH right hand side पर होता ना. Clear? So mirror image जैसे ही बनेगी वो entirely upside, downside, left, right सब बदलेगा. सो देखो, डी शुगर्स की कंपलसरी पहचान है, ये याद ही रखना है तुम्हें. डी शुगर की कंपलसरी पहचान है दैट द सिक्स्थ कार्बन CH2OH is on the top in the correct fissure. ओके, ये डी शुगर्स की पहचान है. करेक्ट. डी शुगर्स में अल्फा और बीटा दो एनोमर्स हैं, उसको भी मैं लाती हूँ. ओके, सो अल्फा एंड बीटा जो टू एनोमर्स हैं उसमें देखो OH एक में राइट है एक में लेफ्ट है. राइट, OH एक में राइट है एक में लेफ्ट है, एक में राइट है एक में लेफ्ट है. तो एक में वो डाउन में आने वाला है, एक में वो अप आने वाला है. दैट इज गोइंग द ओनली डिफरेंस. राइट, यही अंतर होगा, एक में डाउन एक में अप. बाकी राइट लेफ्ट में कॉपी पेस्ट कर दूंगी फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एज आई रिमेम्बर. राइट लेफ्ट राइट राइट, तो मैं उसको कॉपी कर रही हूँ. ओके, वो मैंने कॉपी कर लिया. राइट राइट बोले दूसरा राइट तो आया नहीं, वो आ गया ना इसमें, उसको हम पहले डील कर चुके हैं. फिफ्थ कार्बन का है ना, सो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दैट, इसलिए उस पर नहीं मेंशन करा ज्यादा.
अब this first is the only difference that I have drawn as up, तो rest अब मैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर रही हूँ. OH H OH H and this ये बहुत ही बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ. This is H. Okay, now अल्फा पूरा लिखना चाह रही हूँ. अल्फा D ग्लूको पायरेनोज. यस, इट इज एन अल्फा एनोमर, बट नाम कैसे देते हैं ये भी सीखना पड़ेगा, इसलिए ये लिखा है ग्लूको, यानी इट इज ऑफ ग्लूकोज. बोले दूसरे का होता तो गैलेक्टोपायरेनोज, मतलब इट इज ऑफ गैलेक्टोज. माल्टोपायरेनोज, ना ये अब समझ आ ही गया तुम्हें कि किस तरीके से ये मेंशन होगा वर्ड. ग्लूको, फ्रुक्टो फ्यूरेनोसाइड, वो फ्रुक्टोज का आने वाला है. ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. ओके, यहाँ पर दिस वन इज बीटा डी. ये डी की पहचान मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखोगे. 6th CH2OH अगर करेक्ट फिशर में ऊपर, बोले बार बार करेक्ट क्यों बोल रहे हो, होगा ऊपर, ये बात समझ आ गई. ये बार बार करेक्ट करेक्ट का क्या मतलब है? ये करेक्ट करेक्ट का ये मतलब है बेटा, रुको मैं जरा बना इसको लिख दूं, स्पेलिंग एरर आ जाएगी. ग्लूको पायरेनोज. करेक्ट का मीनिंग ये है कि जस्ट इमेजिन अगर कहीं पर ऐसा फिशर बना हुआ है, सॉरी ऐसा हैवॉर्थ बना हुआ है, where this oxygen of the ring is instead of right side, okay, instead of right side it is mentioned on the left side. आ रहा है समझ में? और C1 C2 C3 C4 C5 है, तो ये इनकरेक्ट हैवॉर्थ है, और तब मेरी बातें वैलिड नहीं होंगी. This will become exactly upside down. As you can see कि ये कैसा है, जैसे पेज आपने फ्लिप किया हो नोटबुक में, ये वैसा फ्लिप्ड स्ट्रक्चर है. So if I go for this structure, अब मेरा OH will become down. जो 1 का डाउन था, ओ ना ना, ये तो अप हो जाएगा. फ्लिप स्ट्रक्चर है. फ्लिप, बार बार बड़बड़ा रही हूँ, फ्लिप स्ट्रक्चर है. ओके, क्या अब क्लियर हो गया कि करेक्ट 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 का मीनिंग क्या था? व्हाट आई वांटेड टू से, इन द कन्वेंशनली करेक्ट, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ही है. बट अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि राइट वाला OH तो ऊपर है, इज इट बीटा? नो, यू डोंट हैव टू गो फॉर द राइट एक्सट्रीम OH, you have to go at the OH of the C1. Is that absolutely clear? Please unmute yourself and accept yes or no. If there is any doubt, तो unmute and ask कि नहीं ये वाला बात नहीं समझ आ रहा है. I realize कि मैं थोड़ी सी फास्ट हो सकती हूँ, but assuming कि at least थोड़ा बेसिक नॉलेज है, not like a phase 1 primary teaching. थोड़ा सा फास्ट कई लोगों को लग सकता है. They can repeat, revise the video and then ask again. I am open for doubts further once you go through the videos. बोलो बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्लियर इफ देयर इज एनीथिंग जो अभी भी परेशान कर रहा है कि नहीं समझ आ रहा है. जितने क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकते थे कि हैवॉर्थ कैसे लिखा, ये नहीं आएगा, वाई कन्वेंशनली करेक्ट बोल रहे हैं, ये सब आई ट्राई टू कवर. बट फिर भी अगर कुछ बचता हो मन में, ख्याल हो कि नहीं ये बात नहीं समझ आती है, गो हेड. नो वन? आई होप सब जाग रहे हैं, है ना? ये जिस तरह से मतलब जितनी जागी हुई मैं हूँ, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, उतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम भी एकदम आंख खोलकर और पूरे कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो. राइट, वेयर इज असली? असली अनम्यूट कर और मुझे आवाज सुना, गुड मॉर्निंग बोल कि तू है. असली, आर यू देयर? गुड मॉर्निंग मैम. तू बेड में तो नहीं है ना? उठ गया है अच्छे से? नो मैडम. नॉट इन बेड. नॉट इन बेड. हाँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे ना, सिर्फ नो में आ गया, उठ गया अच्छे से, नो मैडम. ओके, ठीक है. सो वेरी हैप्पी कि असली इज देयर. व्हाट अबाउट हमारा दूसरा आलसी कार्तिक? कार्तिक, आर यू यस मैम. देयर? यस मैम. अच्छा, के पर नहीं है तो ओके 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 ओके.
I was looking for K, Karthik. Okay. It is from V. हाँ कार्तिक, कैसा है? सुबह सुबह उठा हुआ है, आंखें खुल रही हैं? यस मैम। सोया नहीं है ना? ठीक है, मैं नो मैम। हाँ इवनिंग में आऊंगी 2 to 4। मैं तुझसे जस्ट 2 क्वेश्चंस पूछूंगी फ्रॉम द वीडियो ओनली, नथिंग मोर। कुछ भी नहीं पूछूंगी, एक तुझसे और एक असली से। एंड आई एक्सपेक्ट आंसर्स। ठीक है? लड़कियां तो मुझे पता है कि उठी गई होंगी, वो तो कर लेंगी। तुम ही हमारे लड़के हो जो थोड़े आलसी हो जाते हो। सो अल्फा डी और बीटा डी समझ आ गई तुम्हें बात, है ना? अब सुनो, एक बात और मैं कह रही थी कि ये कंप्लीट प्रोसेस व्हाट एवर आई वाज टेलिंग इज अ सिक्स्थ कार्बन ऑन द टॉप। आई वाज सेइंग दैट दिस इज डी शुगर्स की ही बात कर रही हूँ मैं, ये डी शुगर्स की। बेटा ये जो अब मैं बोल रही हूँ ना, ये 2 बार का क्वेश्चन है जेई का, एडवांस में आया है, बट आजकल मेंस एडवांस में बहुत थिन लाइन डिफरेंस रह गया है। सो मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगी, हो सकता है तुम्हारी स्क्रीन पे छोटा हो जाए। 2 मिनट देना बेटा, मैं वापस एनलार्ज करूंगी। मैं चाह रही हूँ कि इसकी मैं मिरर इमेज तुम्हें बताऊं। Whenever in a question they give na alpha D glucopyranose D sugar and they ask give the structure for the L sugar, ठीक है? And you remember, all of you do remember that the capital D capital L are enantiomeric pairs. They are enantiomeric pairs, मतलब mirror images, complete image। तो ये जो डी शुगर है, जब इसका एल शुगर बनाने की बात आए, कभी भी डोंट गो फॉर बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मैंने अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस का हेवॉर्थ याद करा दिया है। हेवॉर्थ कैसे बनेगा ये याद करा दिया है। ये डाउन है तो ये अल्फा है, ये अप है तो ये बीटा है, रेस्ट इज सेम। डी कब है? जब सिक्स्थ का CH2OH अप है। तुम्हें सिर्फ ये डायरेक्टली हेवॉर्थ बनाना है बच्चों, और मूव करना है सीधे इस हेवॉर्थ की मिरर इमेज के लिए। इमेजिन यहां पर एक मिरर लगा है, ये बीच वाले स्ट्रक्चर को स्किप करना। हाँ ठीक, इसको नहीं, मैं इसके लिए मिरर लगा रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस मिरर फॉर दिस टॉप प्रीवियस पेज स्ट्रक्चर। सीधे मिरर लगाना और ऐसे बनाना। समझ आई बात? अब जैसे ही तुम बनाओगे तो 1 2 3 4 5, देखो सिक्स्थ का CH2OH ऑटोमेटिकली बॉटम में आ जाएगा, है ना? और ये अल्फा वाला जो एनोमेरिक डाउन था OH, ये ऊपर आ जाएगा। तो अल्फा में तुम ये मत याद रखना कि अल्फा OH मतलब OH should be on in any of the alpha anomer, OH should be on the down side। तुम ये याद रखना कि sixth CH2OH and OH if are on the opposite side in Havard, then it is alpha anomer। if they are on the same side, then it is beta anomer। तो तुम D और L दोनों शुगर्स का फंडामेंटल क्लियर रखोगे। ओके, H अब जरा कंप्लीट कर देती हूँ मिरर इमेज बात को। HOH जस्ट जो ऊपर है उसको नीचे, नीचे को ऊपर बनाती जा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। दिस इज माय L शुगर का भी अल्फा एनोमर। तो अगर क्वेश्चन एक देकर दूसरा पूछता है, इफ दे आस्क, ओके कल आ जाएगा शीट में, ऐसे 2-3 क्वेश्चन टुमारो हैं तुम्हारे पास, कल आएंगे क्वेश्चन बैंक में, तो ये कॉन्सेप्ट मिलेगी तुम्हें। ठीक, क्या एकदम क्लियर है? ऐसे ही जब तुम रिवाइज करोगे, प्लीज फिल इन इफ यू राइट और डू फॉर बीटा एनोमर। बीटा एनोमर के लिए भी तुम इसी तरह से मिरर इमेज बनाओगे, एंड यू विल अगेन रियलाइज दैट the same thing, that the 6 CH2OH and OH as in the D were on the same side will also be here on the same side, but the point remains same, 6 CH2OH on the bottom side। ओके, दिस इज बीटा एनोमर। तो ऐसा नहीं याद रखेंगे कि हमेशा अल्फा में OH इज ऑन द डाउन साइड। कैसे याद रखोगे? डी शुगर्स में OH इज ऑन द डाउन साइड। दूसरी बात जो तुम्हें याद रहती है और होगी 100% ये याद होगी, मैं इसको वापस लेती हूँ कि वाई अल्फा एनोमर इज मोर स्टेबल। अल्फा एनोमर इज मोर स्टेबल।
ये जो अल्फा एनोमर ऊपर बना हुआ है, मैं इसका चेयर स्ट्रक्चर बना रही हूँ। चेयर स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, एकदम स्पीड से लेते हैं। ये हो गया ओ और ये करेक्ट। दिस इज माय स्ट्रक्चर बेसिक। अब मैं इसमें शुरू करती हूँ एक्चुअली इक्वेटोरियल वाली चीजें। ये वो अल्फा वाला OH है, एज दे आर ट्रांस। जहां तक मुझे याद है दे वर ट्रांस। फिर भी चेक कर लेती हूँ, ओह दे आर सिस, है ना। एंड इफ दे आर सिस, तो सिस में तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। दे हैव टू बी वन ऑन एक्सियल, वन ऑन इक्वेटोरियल। सही बनाया हमने। देन OH, देन अगेन OH, और सिक्स्थ वाला अब इक्वेटोरियल है OH, CH2 और OH। इसी का अगर मैं बीटा बनाऊं, इफ आई अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, इसी का अगर मैं बीटा बनाऊं तो देखो ये OH, रेस्ट तो कॉपी करना है तो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से कॉपी ही कर रही हूँ। ये बना। ये देखो C1 वाला जो OH है, राइट, इन केस ऑफ अल्फा एनोमर, in case of alpha anomer this is axial, in case of beta anomer it is equatorial. Okay, so अल्फा एंड बीटा एनोमर की ये जो पोजिशनिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये रियलाइज होगा कि ये अल्फा एनोमर इज स्लाइटली मोर स्टेबल. ओके, दिस अल्फा एनोमर इज more stable than the beta anomer. Okay, in the beta anomer, of this glucose, सारे large substrates, okay, all the large substrate that is OH and CH2OH are on equatorial, है ना, all bulky on equatorial, whereas यहाँ पर this one bulky on axial. Therefore, beta anomer is more stable. Oh, repeatedly more stable in a case of glucose. बोले ये क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा बीटा ही मोर स्टेबल होगा। ये ग्लूकोज के लिए वैलिड है बच्चों। ओके, अदर मोनोमर में इज देयर अ पॉसिबिलिटी बोले दूसरा आ जाए? यस यस, वेरी मच आ सकता है। ठीक है, मैं वो सिलेबस में नहीं है ये डिफरेंट बात है, लेकिन आ सकता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट कि ऑलवेज द बीटा इज मोर स्टेबल। ओके, मैं एक एग्जांपल लिख के छोड़ देती हूँ इसको ऐसे मार्क करके कि इन केस ऑफ डी मैनोज, इन केस ऑफ डी मैनोज अल्फा एनोमर इज मोर स्टेबल, अल्फा एनोमर इज मोर स्टेबल। ये इंटरनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुम जानते ही हो, इज मोर स्टेबल। ओके, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, और इसका रीजन भी कुछ एक अलग ही हटके एनोमेरिक इफेक्ट वगैरह कुछ होता है, वो हमारे सिलेबस में ऐसा सच नहीं है। बट यस, ये पता होना चाहिए कि ये कोई रूल नहीं है, ये ग्लूकोज के लिए वैलिड थी। बात खत्म हुई। ओके, तो मेरे ख्याल से हेवॉर्थ और उसके रिप्रेजेंटेशन और मिरर इमेज के क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आई एम मूविंग टू द वर्ड म्यूटा रोटेशन, क्योंकि तुमने साइक्लिक स्ट्रक्चर समझा। आओ अब आते हैं म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज या ऐसे ही कोई भी शुगर। आई टोल्ड यू दैट हेमीएसिटल लिंकेज इज अनस्टेबल, हेमीएसिटल लिंकेज इज अनस्टेबल, वो दोनों तरफ चलता है। दोनों तरफ बोले ओपन चेन फिर साइक्लिक, फिर साइक्लिक फिर ओपन चेन। सो इफ आई स्टार्ट विथ अल्फा एनोमर, मैं अगर अल्फा एनोमर से स्टार्ट करूं जिसमें मुझे याद है कि OH यहाँ है और ये सिक्स्थ वाला तो यहाँ है ही, है ना, बाकी सिस है तो OH और फिर उसके बाद
सारे इक्वेटोरियल पर ही हैं, तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा में इस वाले OH को मुझे बनाना है एक्सियल पर। बाकी तो सभी इक्वेटोरियल पे बनाने हैं, तो ज्यादा अक्ल लगानी नहीं है, ध्यान रखो ये, तो अपने आप काम होता जाएगा। ये जब मैं वाटर में रखती हूँ सोल्यूशन में, व्हेन आई कीप इट, देन डेफिनेटली इट गोज टू इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, ऐसा बना स्ट्रक्चर। फिर साइक्लिक जब बनता है, अब जब मैं बीटा बना रही हूँ तो मुझे बस यही ध्यान रखना है कि ये जो OH है इसको इक्वेटोरियल पे लाना है, बाकी तो फिर वही बात, सब इक्वेटोरियल पे ही है, ज्यादा अकल क्यों लगाऊं। ग्लूकोज की बात हो रही है, ये बन गया। दिस वॉज द बीटा, दिस इज द अल्फा। याद होता जा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। आमने सामने होते हैं तो थोड़ा फेस से पता चलता है कि समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी वोकल, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव फ्रॉम योर एंड कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज वेट। सो ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। Now, when we keep this in solution, when we keep such structures in solutions, then whether I start with 100% alpha or start with 100% beta, I end up to a fixed same composition, fixed same composition of the structure. मैं fixed same structure composition पे पहुंच जाती हूँ, and that is called muta rotation. This fixed composition is evaluated, is estimated by the calculation of specific rotation of the mixture. बोले क्या मतलब? अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन है +112 डिग्री, बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन है +18.7 डिग्रीज. So if I start with 100% alpha, okay, alpha 100% alpha, तो मुझे स्पेसिफिक रोटेशन मिलता है +112. If I start with 100% beta, मुझे ये मिलता है. But if I keep this solution for some time in water, in aqueous conditions, in solutions, then I end up कि mixture specific rotation जो बनता है end में is always a fixed value of +52.7. It appears इसके लिए increase हुई है value and it appears for it decrease हुई है. बोली ये क्या हो गया? So I think now you can realize that there is a percentage presence of both. It is not that either is now 100%. दोनों present है. ओके दोनों थोड़े थोड़े प्रेजेंट हैं. नाउ कौन सा और कितना यू कैन कैलकुलेट ऑफ कोर्स. लाइक इफ आई अज्यूम दैट दिस इज से दिस इज x and this is then 100 minus x, so what I can say is 112 100 minus x plus 18.7x is going to be 52.7. ये सब पॉजिटिव वैल्यूज थी, मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लूं. सो रफली इसको कैलकुलेट करके आ ही जाएगा दैट अल्फा एनोमर इज 36% roughly and beta anomer will be 64%. ये तुम सॉल्व भी कर लेना मैथमेटिकली, but this is what you will get. So see, the thermodynamic stability prevails that beta anomer as is more stable. तो नेचर को जब ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम लेना पड़ा तो उसने बीटा एनोमर को मोर परसेंटेज में प्रेफर करा. ओके मैं यहां लिखती हूं दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन is called mutarotation. Okay, this change in specific rotation is called mutarotation. And again मैं बोलूंगी कि ये हमेशा वैलिड नहीं है. ये किसके लिए थी बात? ये ग्लूकोज, डी ग्लूकोज के लिए वैलिड है. फॉर डी मैनोज अगर यही म्यूटारोटेशन की बात करी जाए, अल्फा एनोमर in case of mannose is 69%, ये 64 है हाँ, and beta anomer इसमें आता है 31%. Just to keep in your mind that glucose alpha anomer is the king, but not as a rule for all monosaccharide. It may or may not be true.
till here it is all okay. यहाँ पर one more point. So what was the key for this mutarotation? The presence of hemiacetal linkage, right? So all mo monosaccharides, all monosaccharides and polysaccharides all इसके लिए है, ये एक टर्म है, and polysaccharides having hemiacetal linkage, ये एक कंडीशन है. क्लियर है? ये दो चीजें हैं. All monosaccharides and polysaccharides having hemiacetal linkage show mutarotation. Is that absolutely clear? कोई confusion नहीं? और हाँ, polysaccharide में even if one disaccharide, trisaccharide में if one of the end is showing this तो भी चलेगा. So this was about hemiacetal linkage. तो बोले acetal linkage क्या है? बोले acetal भी होता है. Yes, acetal बिल्कुल होता है. Okay, acetal is there. Acetal linkage is called glycosidic linkage. Acetal linkage in carbohydrates is called glycosidic linkage. उसको हम glycosidic linkage कहेंगे. ओके, एसिटल लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे. एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is used for polysaccharide formation. ये कहीं ना कहीं यूज होता ही है. Also लिखो, not always, also. Right? So as we were doing अभी तक जो हम कर रहे थे, that this OH, okay, this C1, अगर इसको C1 में कहूं, मैंने ऑक्सीजन को यहां रख लेना है. तो ये जो OH था, ये anomeric OH, anomeric OH. If I treat it with any alcohol, if it is CH3OH, it could be phenol, it could be ethanol. Okay, so when you treat with this OH, see, in presence of H plus, this will go away as a carbocation. And what is the reason? Complete octet from this side. This oxygen will give plus R. Complete octet resonance will support us to remove this OH. So when this OH is removed and this alcohols attack, then we get OMe, as I drew the arrow from methanol. Now this OMe जो मैंने बनाया बेटा, इस कार्बन को देखो. Look at this carbon. ऑक्सीजन कार्बन, ये कार्बन जो है ये OR लिंकेज वाला है. This is acetal. Hemiacetal is OH-OR. Acetal is OR-OR. समझ आई बात? OR-OR और OH-OR, hemiacetal and acetal. And acetal linkages are very stable. Acetal linkage जब भी बनेंगे बहुत स्टेबल है. ये बेसिक कंडीशंस में भी नहीं टूटते. मैं यहां लिखूंगी, acetal linkages are very stable. Okay, they do not break under
neutral or acidic hydrolysis. Oh, acidic, basic hydrolysis, alkaline. Basic hydrolysis conditions. ये इस कंडीशन में कोई ने छू भी नहीं सकता. Okay? They hydrolyze only under acidic conditions. Acidic conditions. Okay, so glycosidic linkage I think is clear. Now when two monosaccharides combine to form a disaccharide, then the linkage used, as I said, is this particular linkage. This particular बोले तो glycosidic linkage. हम इसका इस्तेमाल करेंगे. And ये जो बनता है ना glycosidic linkage, if I take that this was a alpha D glucopyranose, तो इसे मैं बोलूंगी, इसका नाम देने का एक काम कर रही हूँ. It will be called as methyl alpha D glucopyranoside. Okay, glucopyranoside. Is that clear? And on hydrolysis of these glycosidic linkages, the alcohol formed is called aglycone. Not that important, huh? ये line you can skip. याद रहे बढ़िया, नहीं याद रहे तो ठीक है. That is called aglycone. ठीक. So ये हमारा हुआ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में पूरी जानकारी. म्यूटा रोटेशन हमने करा. जो चीजें मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ लिखूं वो मैं यहाँ से बता रही हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एनसीईआरटी से, लाइक दिस. ये 2000 मेरे ख्याल से 18 मेंस में आया है और एडवांस में भी एक बार आया है. दैट हेक्सेन, देखो यहाँ रेड फॉस्फोरस नहीं लिखा है. देन ऑल्सो एचआई के साथ एन हेक्सेन बना है. जैसे ही शुरू होंगे कार्बोहाइड्रेट के तुम्हारे इंटरनल एग्जाम, तुम मानकर चलो इफ देयर विल बी 10 एग्जाम्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, आउट ऑफ दो 6 विल हैव दिस. कभी फ्रुक्टोज पे, कभी ग्लूकोज पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, बहुत फिक्स ये क्वेश्चन. कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव के एक स्टेटमेंट में यूज कर लेंगे कभी कहीं, बट ये बना रहेगा. वह क्या बना रहेगा? दैट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ दीज मोनो सेक्राइड्स, आप अगर एचआई के साथ हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग विद एचआई, then they get turned up into alkanes. Okay, fructose will also give an hexane, glucose will also giving an hexane. Okay, so ये एक important point है. NH2OH, that is oxime. So yes, they exhibit oxime formation. Normal property of aldehyde and ketones. H2O गया, oxime बना. They have cyanohydrin addition. ठीक, इसको मैं एंड में ले रही हूँ. ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन आई विल टेक. एसिटाइलेशन, यहाँ ऐसा कुछ नया प्रॉपर्टी नहीं है. सो आई एम मूविंग. दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप. इफ देयर आर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स, then alcohol plus acid and acid derivatives, Cl or RCOOCOR, HCl or this acid, and you get esters. जितने OH आपके पास हैं, all can be converted to ester. बोले यहाँ तो 5 ही हैं. Yes, then 5. If they are cyclic, then also yes. If they are cyclic, तो बोले कितने OH होंगे, आओ देख लेते हैं. If they are cyclic, आओ ऊपर चलें. Then how many OH? See, 1, 2, 3, 4, 5. Then also there are 5 OH which will be completely converted to acetylated esters.
And if it is cyclic or open chain, then also you will have 5 esters. Okay. This again oxidation to saccharic and gluconic acid. रुकते हैं, इस पर मैं आ ही जाऊंगी 2 मिनट बाद. This cyclic structure, ये जो पॉइंट है 3, ये जबानी याद होने चाहिए, एकदम धड़ 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 दौड़नी चाहिए जबान. एल्डिहाइड है ग्लूकोज के पास, but it fails to give 2,4-DNP test, also known as Brady's reagent, shift test and NHSO3. ये 3 एकदम याद कर लो, 4 बार अभी बोल लो. Glucose fails to give DNP test, Schiff's test and NHSO3 addition. ये नहीं बनाता है. Pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंट. बोले क्यों? देखो, इफ पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, ये रहा, ये पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, ये जो बना है, ओके, इफ इट गिव्स रिएक्शन ऑफ aldehyde, it means it is an open chain. And if pentacetate of glucose do not give reaction of open chain, तो ये साइक्लिक है, इसलिए नहीं दे रहा है. ओके, तो हमें ये लाइन याद रखनी है कि pentacetate of glucose do not give reaction with hydroxylamine, then it is in a cyclic form. Okay, this is anomeric, पूरा पॉइंट है anomeric. यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज को हमने याद करा था कि इज लेस स्टेबल, बीटा मोर स्टेबल. ये मेल्टिंग पॉइंट याद करना पड़ेगा. जो मोर स्टेबल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. Okay, is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while beta is obtained by crystallization at 371 Kelvin. ये important line है. ये melting point पूछते हैं. किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? जो ज्यादा स्टेबल है उसका ज्यादा है. अगर एनसीईआरटी एकदम पूरी श्रद्धा से पढ़ोगे तो ये सब याद रहता है. तुमसे पहले वालों ने याद किया है. ठीक है. देन ये हम सब कर चुके हैं. व्हाट इज एनोमेरिक, पायरेनोस स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ फ्रुक्टोज इट इज फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर. क्या फ्रुक्टोज 6 की रिंग में नहीं एग्जिस्ट कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. 3, 4, 5, 6. व्हेन इस 5 से अटैक लेते हैं देन इट इज फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर. 6 से अटैक हो इट इज कॉल्ड pyranose structure. It is found in nature. ये सब इक्विलिब्रियम में है. ओके, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम इन माय ड्राइंग मैं यहीं पर तुम्हें बताती हूँ. फॉर दिस कन्वेंशनली करेक्ट Haworth, ऑक्सीजन इज एट द वर्टिकल टॉप ऑफ दिस टाइप ऑफ pentagon. IUPAC numbering again in the clockwise 2, 3, 4, 5, 6. Sixth is again on the top. And in the alpha, OH of anomeric and CH2OH are trans. In the beta, ये देख लो, same बात valid आई, are in the cis. Okay, and again I am saying conventionally correct. If flip कर दोगे तो upside downside चीज change होगी, but relative cis and trans will remain same. Is that clear? वो same बना रहेगा. डायसेक्राइड्स पे यहाँ बढ़ रहे हैं हम. डायसेक्राइड से पहले एक बार और अपना पॉइंट चेक कर लें. अपना पॉइंट मतलब हमारी तरफ से कोई ऐसी रिएक्शन बच रही हो वो चेक कर लें अपने. अच्छा, ये रहे नोट्स. सो यहाँ तक आई गेस इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. डिफरेंट रिएक्शंस, मुझे रिएक्शंस बच रही हैं जो मुझे एनसीईआरटी में नहीं दिखती हैं और तुम्हें पता होना चाहिए. मैं उन रिएक्शंस पे आ रही हूँ. ओके, जो एनसीईआरटी में दी है वो मैं रिपीट टेलीकास्ट नहीं लिख रही हूँ. सो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट पता होना चाहिए दैट मोनोसैकेराइड्स undergo enolization, जिसे तुम लिख सकते हो वर्ड टॉटोमराइजेशन,
और उसके बाद इट ऑल्सो अंडरगो टू आइसोमराइजेशन। अब ये बोले बहुत सारी चीज हो गई, सब एक ही साथ हो जाएगा क्या? आप बताती हूँ एक ही साथ कैसे हो जाएगा। देखो अगर मैंने डी ग्लूकोज लिया, CH2H, राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, ये अल्फा H कैन गो टू इनॉल फॉर्मेशन, ये OH, ये OH, रेस्ट ऐसे CH2OH, OH, OH, OH. Correct. Now when it again undergo to tautomerize, then yes, it can have CHO, CH2OH, correct, and OH can go to left instead of right. This OH I'm talking of, this OH. और ये भी हो सकता है कि instead of aldo it forms a keto. Instead of aldo it forms a keto. ये भी तो हो सकता है। ये है हमारा फ्रुक्टोज। ये हमने शुरुआत करी थी डी ग्लूकोज से। ये है उसका इनॉल। और ये क्या है भाई? ये इसको कैसे ना, ये इतने नाम याद रखने हैं क्या? मैंने इसकी लास्ट पेज पे कहीं एक ये रहा, ये ऐड कर रखा है दैट हाउ वन कार्बन इज इंक्रीज्ड। तो जरा ध्यान से देखना, दिस इज ग्लूकोज। ओके, इफ यू सी ग्लूकोज एंड mannose, if you see glucose and mannose, I think only C2 एपिमर है mannose। एपिमर याद है ना, that they are diastereomeric and only point of difference is one carbon. All agreed? अब तुम ही चेक करके मुझे कंफर्म करते जाओ, which is C3 epimer of glucose, which is C3 epimer of glucose। मुझे लगता है ये है, चेक करो तो बेटा, मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। ये C3 एपिमर लग रहा है मुझे। दैट डिफरेंस ये आएगा ग्लूकोज से इसका, राइट लेफ्ट का, बाकी कॉपी पेस्ट आएगा। एग्रीड? अब आओ C4 एपिमर ढूंढो। मुझे लगता है ये C4 एपिमर होगा। सबने चेक कर लिया? इज दैट वेल चेक्ड? हाँ, चलो इसको मैं तुम्हें याद करा दूं। मैं इसे ऐसे याद रखती हूँ, ग्लूकोज के लिए मैगी, ग्लूकोज की मैगी, ग्लूकोज की मैगी मतलब C2 epimer is mannose, C3 epimer is allose, C4 epimer is galactose। गुल्लोज और गैलेक्टोज में कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक बार चेक कर लो। C4 epimer is galactose, not गुल्लोज। Am I right? सबने वेरीफाई कर लिया? मैं पॉज इसीलिए ली हूँ, है ना, गुल्लोज में और भी जगह चेंजेस हैं। चलो, सो एक गैलेक्टोज है, ठीक है, मैगी GU होता तो गुल्लोज। आयोडोज को मैं C5 लिख रही हूँ, बट आयोडोज बिकम्स L शुगर। आयोडोज का L शुगर जो आएगा ना, वो इसका एपिमर होगा। बोले ये क्या अर्थ हुआ? अभी लिखती हूँ। L आयोडोज, यहाँ तो डी आयोडोज लिखा हुआ है, L आयोडोज। L आयोडोज मतलब मुझे पता है कि क्या करना है, OH लेफ्ट में बनाना है। ओके, और इस वाले का पूरा मिरर इमेज लिखना है, तो OH H, OH H, OH H H,
OH 1 2 3 4 5 6. Check करो from C1 to C4 it will be same as this one. क्या बोलते हैं ग्लूकोज चेक करना एक बार इस आइडोज को एक बार तुम्हें चेक करना होगा it is मैम सी becoming आइडोज is becoming exactly mirror image हाँ ओके तो बल्कि उल्टा है आइडोज इज नॉट एन एपिमर राइट आइडोज इज नॉट एन एपिमर आइडोज तो पूरा का पूरा ये वाली साइट अकेली है जो सेम है फ्रॉम ग्लूकोज रेस्ट ऑल इज चेंज्ड देखो C4 is the only C5 is the only one which is left rest all is identical ठीक तो you can remove this iodose from the list and तुम याद रखो mag C2 C3 C4 ठीक है mag C2 C3 C4 टेट्रोस से आगे बढ़े किस तरीके से आओ वापस ऊपर आते हैं सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द आइसोमराइजेशन हो सकता है सो अगर सोल्यूशन में रखूं तो ग्लूकोज कैन कन्वर्ट टू फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज कैन कन्वर्ट टू एल ग्लूकोज और ये पूरा आपस में इंटर कन्वर्शन हो सकता है हाँ इसका नाम हमें लिखना रह गया है सो दिस वाज C2 सो ये मैनोज होगा ये डी मैनोज बना है समझ आ गई बात इसको याद रखना आसान हो जाएगा थोड़ा सा कुछ केसेस याद हो जाएंगे ठीक तो ये हुआ हमारा आइसोमराइजेशन विच इज नॉट क्लियरली मेंशन इन एनसीईआरटी ठीक फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स मैंने तुम्हें बता ही दिया है एस्टर्स वी हैव डन बट एस्टर्स के बाद एक फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल ये भी बताना है कन्वर्जन टू साइक्लिक एसिटल्स देखो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल उनके पास बहुत सारे OH हैं ओके सो ये जो 1,2 डायोल कंडीशन है डायोल इन द रिंग ओके it is used for it is formation of the cyclic acetals occurs via vicinal OH groups ये जो vicinal OH groups हैं इनसे होगा but they have to be in cis diol condition they have to be in a cis condition to form such cyclic क्या meaning है what I'm saying is जब ये OH 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 जब मैं इन्हें एसीटोन से ट्रीट करूंगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये कार्बोनिल है इस पर हमारी 2ROH की अटैक और OR ऐसा ओके सो इस तरीके से O O ये देखो ये एसीटोन है ये सिस था ना क्योंकि एक है एक्शियल एक है इक्वेटोरियल ये दोनों हैं हमारे इसी तरह से मुझे इसको एक एक्शियल देना पड़ेगा अदरवाइज ये ट्रांस हो जाएंगे ये एक एक्शियल ये इक्वेटोरियल ओके ये मुझे गैलेक्टोपायरानोज यूज करना पड़ रहा है गैलेक्टोपायरानोज तो मैं 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और दोनों से ये एसीटोन का CH3 समझ आ गया तुम्हें साइक्लिक एसिटल कौन बनाएगा जो OH सिस होंगे बस वही बनाएंगे नॉट ऑल ठीक लेट अस गो टू ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स ना ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स बहुत सारे लेवल पर हो सकता है
बोले इसका क्या मतलब है? हम बीच की सेट ऑफ रिंग तो छोड़ ही दें, forget about these, forget. But on top, I can have only इसका oxidation without touching bottom. I can have दोनों का oxidation as acids. These are my two choices. Okay. When we have one aldehyde end converted to acid, okay, only aldehyde end converted to acid, then it is called, or rather they are called, जो बनती हैं चीजें, ओके, जो प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह के ऑक्सीडेशंस को, उसे हम बोलते हैं अल्डोनिक एसिड्स. ओके, if it is two acid, then they are called aldonic acids. When दोनों एंड जाते हैं तो उसे कहते हैं हम अल्डारिक एसिड. अल्डारिक मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड प्लस 1 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हुए हैं तो अल्डारिक एसिड. और सिर्फ एक एंड हुआ है तो अल्डोनिक एसिड. क्लियर? विथ फेलिंग, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड. बारफोर्ड क्या है? कॉपर +1 एसिटेट. ओके, फेलिंग क्या है? कॉपर सल्फेट. सिर्फ स्टेबलाइजर बदल रहे हैं. फेलिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय रोशली सॉल्ट, बेनेडिक्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय टार्ट्रेट्स, और कुछ नहीं है. ये सब तीनों के तीनों आर कॉपर +2 salts. Okay, +2 salts. When they react with our monosaccharides, then aldonic acids plus copper +1 oxide is precipitated. So see, they have reduced copper 2 plus to copper +1. Sugars reduced copper +2 to copper +1. And so they are called reducing sugars. क्या ये वर्ड क्लियर है? reducing sugar. So they are called reducing sugars. And एकदम क्लियर रखना, all monosaccharides are reducing. All monosaccharides are reducing. Whatever will show mutarotation will be reducing sugar. Whether it is ketose, then also, क्योंकि ketose sugars either will convert in solution to aldose, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने tautomerization से बताया था, or they will be alpha hydroxycarbonyls, alpha hydroxyketones, alpha hydroxyketones and aldehydes. ये दोनों, और एक सेकेंड, and toluenes also, ये दोनों, ये total are reducing sugars. Is that okay? So ये reducing है. मोनोसेक्राइड में कैसे पता लगाना है? तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी लाइक दैट, है ना. डाइसेक्राइड में मैं अभी 5 मिनट में बताती हूँ. तो ब्रोम, दिस इज ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स. ब्रोमिन वाटर इज इंपॉर्टेंट अगेन. ब्रोमिन वाटर जब रिएक्ट करता है, इफ अल्डोज शुगर है तो वो बनेंगी अल्डोनिक एसिड. कीटोज शुगर, then it is no reaction. No reaction. तो बोले इससे टेस्ट क्या हो गया? ब्रोमिन वाटर ब्राउन कलर,
अनसैचुरेशन टेस्ट जैसा, ब्राउन। यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड टू ब्रोमाइड, कलरलेस। नो रिएक्शन, ब्राउन, ब्राउन। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, बिकॉज इट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अल्डोज शुगर्स एंड ketose sugars. Bromine water test is there to differentiate between aldose and ketose sugars. ठीक है। ऐसा ही एक और टेस्ट है, सेलेविनॉफ टेस्ट। ये भी अल्डोज और कीटोज में डिफरेंशिएट करता है। ओके, सेलेविनॉफ रिएजेंट, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत कन्वर्ट अंतर हो सकता है। हाँ, मेरे दिमाग में जो है मैंने दोनों लिख देनी है। सेलिविनॉफ है या सेलेविनॉफ है, सेलिविनॉफ टेस्ट। सो सेलेविनॉफ रिएजेंट इज सेलिविनॉफ reagent is resorcinol. What is resorcinol? Meta plus HCl. और टेस्ट में तुम्हें बस ये याद रखना है, ओके, कीटोन अगर है, दिस इज टेस्ट फॉर कीटोज शुगर्स प्लस सेलेविनॉफ रिएजेंट। ओके, तो रैपिडली जो रिएजेंट है उसमें कलर चेंज आएगा। ओके, और एक चेरी रेड कलर आ जाएगा। अल्डोज शुगर्स, आई वुड सजेस्ट यू, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसको विकिपीडिया में देखना है। नो चेंज। सेलेविनॉफ को विकिपीडिया से देख लेना, 4 लाइन है उसमें, भी ज्यादा नहीं है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, फॉर सेलेविनॉफ विल डिपेंड ऑन विकिपीडिया एज ऑलवेज, वो बहुत शॉर्ट में और काम का देगा। ठीक, सो दैट इज फॉर सेलेविनॉफ। ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। Nitric acid oxidizes aldehyde to COH and 1 degree alcohol and also to COH. So the products are aldaric acid. Products are aldaric acids. ठीक, that would be it. Aldaric acid में इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे जहाँ तक लगता है तुम सबको HiO4 ऑक्सीडेशन भी याद होगा। ऑक्सीड, दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तुम्हें क्या याद रखना है, इस तरह के लिंकेजेस, देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये हेमी एसिटल लिंकेज है तो HiO4 पॉजिटिव। एसिटल लिंकेज, HiO4 fails. Okay, HiO4 will fail for for acetal linkage. ठीक, ये हुआ ऑक्सीडेशन। Reductions, products are aldetols. For example, if I have glucose, I treat it with NaBH4, all are reduced. So I will have CH2OH, CHOH 4 times, CH2OH, these are called aldetols. Okay. And last most important reaction is, which is again not given in NCERT and very important, is osazones. Osazone is reaction of monosaccharides with phenylhydrazine. Okay. CHO, CHOH, रेस्ट से मुझे कुछ मतलब नहीं। अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन with aldehyde ketone is our starting point.
double bond N, NH, PH, CHOH, like this. This can tautomerize. कैसे tautomerize देखो, C double bond C H OH H N H NH PH, and you can see the H bonding here. ये लाइन, ये पॉइंट देखो, इस स्टेज पे आई विल लूज PHNH2. ये जब वापस टॉटोमराइज कर रहा है, it is converting to this molecule. One more molecule of PH, NH, NH2 gone, H2O. CH double bond. रादर मैं इसी में 2 molecules ले लेती हूँ, तो एक स्टेप मुझे कम लिखनी पड़ेगी. ये भी गया. So CH double bond N, NHPH, C double bond N. अब यहाँ इंट्रामोलिकुलर H bonding होगी, हाँ. NHPH 6-member chelation will be formed. That is the reason why these are stable. These are called OSA zones. And as you can see, only C1 and C2 are utilized. So बोले वापस we can go further and further and all 6 can be utilized. Yes, theoretically yes, but practically this phenyl OSA zones ये जो बनते हैं, these are precipitates here only. Okay. These are precipitates. So यहाँ पर ही ये precipitate बन के बाहर निकल जाएंगे. Okay, these are orange, yellow precipitates. So they are also test for monosaccharide. They are also test for monosaccharide. क्या क्या याद रखना है? First, only C1 and C2 are utilized for OSA zone formation. Okay, only these two. Therefore, glucose, mannose and fructose, जिनमें सिर्फ फर्स्ट 2 में डिफरेंस है, IUPAC position 1 and 2, will give same OSA zone. Will give same OSA zone, very important. Second, okay, 1 mole OSA zone formation में 1 monosaccharide consumes 3 phenylhydrazine. And third, they are test. They are lab test. They are crystalline solids. ये point तुम्हें याद रखना है. Is that clear? ये हमारे मोनोसेक्राइड की कहानी खत्म हुई. डाइसेक्राइड वगैरह में तुम्हें क्या क्या याद रखना है मैं लिख देती हूँ, तुम रिवीजन में एनसीईआरटी से याद रखोगे. कोई डाउट हुआ तो मैं फिर कल बताऊंगी. डाइसेक्राइड में तुम्हें हर शुगर के लिए याद रखना है whether it is reducing or non reducing. ठीक. दूसरा, मोनोमर कौन है, which are the monomer, ये लिख ही लेना है 3 points on one paper. And which is the glycosidic linkage, alpha, beta, beta, alpha. Let me exemplify. For example, in case of sugar. In case of sugar, first you have to find the anomeric carbon. तो ये रहा anomeric carbon. इस पे ये भी ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज है, ये भी ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज है. सो ये एसिटल हो गया. यहाँ पर ये है anomeric carbon, oxygen, oxygen. So you have to find such carbon in the molecule which has 2 OR-OR linkage or which has 2 oxygen से connected linkage. If वो carbon hemiacetal हुआ,
तो बोलना ये रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर वो एसिटल हुआ तो बोलना ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखो यहाँ पर ये दोनों लिंकेज आर एसिटल, सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, दूसरा अल्फा बीटा, तो तुम्हें बताई है कि देखो ये C1 पे ये ऑक्सीजन डाउन साइड है, तो ये अल्फा है, ये डाउन साइड है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसको होना किधर था, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड फ्लिप होता तो दिस ऑक्सीजन वुड हैव बीन अपसाइड, सो ये बीटा है। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि इट इज अ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों ही यूज हो रहे हैं इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हेन यू गो टू मैल्टोज, देखो ये C1 एनोमेरिक कार्बन, ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया, लेकिन ये वाला C1 कैसा हो गया, रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें हेमी एसिटल आ रहा है बेटा, OH OR OH OR। तो तुम पूरी माल्टोज को बोलने वाले हो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेज ऐसे बोलोगे, C1 C4 लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। क्या समझ आई बात? सिमिलरली लैक्टोज रिड्यूसिंग, अब तुम जब रिवाइज करो चेक करना, ये देखो ये रहा रिड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ है इसमें हेमी एसिटल लिंकेज, एंड पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज C1 C4। बोले C1 C4 तो ठीक है, ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, किसका C1 है, जिसका C1 यूज होगा वही कहलाएगा, ये गैलेक्टोसाइडिक कहलाएगा, गैलेक्टोसाइडिक। बोले क्यों, क्योंकि पायरेनो स्ट्रक्चर इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, गैलेक्टोज का यूज हो रहा है, ये तो फ्री है इसलिए। सिमिलरली यू हैव टू डू पॉलीसेकेराइड का भी रिवीजन ऐसे ही, कौन सा पॉइंट ऑफ लिंकेज है। इस पॉलीसेकेराइड में जो वर्ड मैंने नहीं किया है, जो तुम्हें ढूंढना है वो है, या मुझसे पूछ लेना जब भी तुम्हें लगे कलवल, इसमें दो एक जो एक्स्ट्रा नाम तुम्हें याद रखने हैं, सेल्लोबायोस। ओके, सेल्लोबायोस वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, सेल्लोबायोस यहाँ पर कहीं मेंशन है, तो सेलुलोज के अंदर कहीं आ जाएगा सेल्लोबायोस, या माइलोपेक्टिन। ये सब वर्ड अच्छे से याद रखना, ये सब क्या है। और एक तुम्हें याद रखना है, व्हाट इज मॉलिश टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं रिएजेंट जो है वो यहाँ लिख कर इस नोटबुक को अपलोड करूंगी, तो इसमें तो होगा ही, बट तुम्हें याद भी रखना है। ओके, मॉलिश रिएजेंट इज अल्फा नेफ्थॉल डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल। मॉलिश reagent is alpha nephthol dissolved in ethanol। ओके, और टेस्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सारे लोग देते हैं ये टेस्ट, प्लस मॉलिश रिएजेंट, यू विल गेट अ पर्पल रिंग और पर्पल कलर, दिस इज द टेस्ट। तो बच्चों, एज फास्ट एज आई कुड आई ट्राई टू सम अप। मैं थोड़ा और पॉलीसेकेराइड डिस्कस करना चाहती थी, बट टाइम की अब कमी है। आई विल शेयर दिस नोटबुक, इसको रिवाइज करोगे और कल तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। प्लीज रीड NCERT, उसको पूरा पढ़कर कंप्लीट अच्छे से कर लेना, ठीक। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, तो व्हाट्सएप ग्रुप है, देयर यू कैन आस्क, इज दैट क्लियर, वहां पर पूछ लेना, या फिर तुम कैंपस में मैं आऊंगी तब डेफिनेटली यू आर अलाउड टू आस्क फॉर दोज हु आर इन द कैंपस, इज दैट क्लियर। और कोई बात हो तो अलग से पूछ लो, रेस्ट ऑफ यू कैन गो फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप करी जाए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।